Well, gentlemen, is the screen clear to you? Visible है आपको? Hello. Yes, sir. अच्छा. देखिए, on your screen, this is the expansion of binomial x plus y whole power n. There are two styles of expanding. First you write x for n, then bring n as a coefficient, then reduce one power जो आपने यहाँ पे लिखी है ना पहले, इसमें से एक कम कर दें x power n minus 1 and multiply with the second term. So this will be your next term. I am repeating again, listen carefully, that you bring this power as coefficient, which is n, then reduce one from the previous term x power. This was x power n, you just subtract one from it. So x power n minus 1 and y power 1. Normally we do not write 1, so y as it is. Then I go to the next term. For the third term, you write n. The next factor will be n minus 1 and multiply with 1 into 2. This is what, this was the first and second. This is 2 factorial actually. If you remember, how do we go for the factorial expansion? 3 factorial means 3 into 2 into 1. The answer will be 6. 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1. I think you have studied it. So whatever is the factorial, say 7 factorial. So from 7 till 1, you will write all the digits and multiply them. So that will be your answer. So here is the 2 factorial because 1 into 2. Here was 1 factorial, 2 factorial. We'll write now 3 factorial, so 3 into 2 into 1. And in the next term, 4 factorial, 4 into 3 into 2 into 1, okay? So in that way, we keep on increasing the factorial in the denominators. And how do we proceed now? And as it is, next term, you keep on reducing the power. So yeah, this n factor, n into n minus 1 divided by 2 factorial. You further reduce 1 from the x power. It was n minus 1 already. It will become n minus 2. एक और कम कर दिया. Y की एक power बढ़ा दें. It was 1 already. It is now 2. ठीक है? Now look here. Now we'll be writing 3 factors here. n minus 1. Next will be n minus 2. Over 3 factorial. I told you 3 factorial means 3 into 2 into 1. Now reduce 1 from x power and add 1 in the y power. So we further reduce the power of x over here is n minus 2. In the next term will be n minus 3. And increase the second term power. It was 2, make it 3. Next term will be, and this all these factors you will write as they are. Then the next factor will be n minus 3. Okay, this was 3 factorial, here it will be 4 factorial. Further reduce 1 from x power, n minus 3 was there, now it will be n minus 4. Add 1 to the y power, it was 3, it will become 4. And so on and so forth. You'll keep on writing the next terms. And the last term will be just simply the power of y. This y is the last term, and whatever the whole power was there, this will be your last term, that is y power n. So this is known as the binomial theorem. Any question if anybody wants to ask? देखिए कल को आपको ये सब कुछ खुद ही लिखना है. Anybody who can tell me the अच्छा आपको कैलकुलेटर पे फैक्टोरियल्स दिए हुए हैं. If you know how to handle your calculators, I told you. तो एक फैक्टोरियल का निशान बना होता है. 7 डाला, आगे फैक्टोरियल पुश कीजिए और you will get the answer. Do you have your calculators with you? Students, tell me, all of you have the calculators with you? In the first lecture, I told you how to handle the calculators. Open your calculators and tell me what is the
आंसर ऑफ 7 फैक्टोरियल डायरेक्टली फ्रॉम योर कैलकुलेटर। बताइए, जस्ट राइट 7। और आप देखिए शिफ्ट के नीचे जब शिफ्ट दबाएंगे तो x की पावर जहां -1 है ना, बिलो दैट इज x फैक्टोरियल। तो शिफ्ट एंड देन x फैक्टोरियल। व्हाट आंसर फॉर 7 फैक्टोरियल? Anybody who has got it from your calculators? ये जो आप लोग बिल्कुल खामोश बैठ जाते हैं ना, इट्स नो गुड। डोंट यू हैव द कैलकुलेटर्स? टेल मी, है आपके पास या नहीं? आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन फ्रॉम एवरीबॉडी। स्टूडेंट्स, आई एम बताइए सर 5040। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। देखिए ये मैं सिखा रहा हूँ ना बैठ के, अब अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। जो लोग सीख रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, श्योरली दे विल बी गेटिंग गुड मार्क्स। तो बच्चे, जब आपको एक आपसे बड़ा आपको कुछ बताए तो सुनना आपके ऊपर फर्ज है, आपसे पूछे तो उसको बताना फर्ज है। जवाब दिया करें ना। आपकी क्लास में माशाल्लाह 30 से ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं और आवाज सिर्फ 3 बच्चों की आ रही है बस। जो पीछे रहना पसंद करते हैं, बैक बेंचर्स हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल इन द बैक स्क्रीन है, पत्ते नहीं चल रहा वो कहाँ बैठे हैं, अटेंडेंस लगाई और जाके सो गए। और यूँ समझते हैं हम बहुत अल्लामा है, खुद से पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ा जाएगा बच्चे। चलिए मुझे बताएं 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या आ रहा है? कौन बता रहा है? 120। 120। 120, ठीक है, बिल्कुल शाबाश। अब देखिए इसी थ्योरम को एक और स्टाइल में भी लिखा जाता है। देखिए इसने यहाँ लिखा है या नहीं लिखा है? हाँ, ये इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन नोटेशन, जहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर ये चीज पढ़ाई जाती है। तो ये होता है एनसीआर। एनसीआर का होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आई फैक्टोरियल, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एन माइनस आर का फैक्टोरियल। आते हैं हम ये। हाँ है 50 करोड़। नॉइस, प्लीज अवॉइड योर माइक्स। जहाँ पे ज्यादा शोर है वो अपना माइक बंद कर लें आप। NCR is n, n-1, n-2, कहाँ तक जाएंगे? n माइनस r, और ये होता है r-1 एक्चुअली, लेकिन माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा, n माइनस r प्लस 1, और मल्टीप्लाई करेंगे r फैक्टोरियल। ये r फैक्टोरियल है ना, 1 2 3 अप टू r। जैसे 8C3 को देखें, 8 से लेके 8 7 6, अभी कैसे पता चलेगा 6? n माइनस आर प्लस 1, यानी n आपका है 8 माइनस आर 3, 8 माइनस 3 5, और 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, आखिरी वैल्यू 6। और ये 1 2 3 जो नीचे लिखा हुआ है 3, इसको 3 तक मल्टीप्लाई कर दें, 1 से लेकर शुरू कीजिए तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे जो भी आ जाएगा। तो नेट आंसर इज 56। यहाँ 7C4 है, तो देखिए आखिरी टर्म और किस तरह से आती है, n माइनस आर प्लस 1, यानी n में क्या ऐड कर दें, इसको 8 कर लें और माइनस ये कर दें 4, ठीक है ना। 7 से लेके 4 तक जाइएगा, 7 6 5 4, और ये 4 है तो 1 से लेके 4 तक 1 2 3 4, और आप उसको कैंसिल करेंगे 35 आ गया। ये कॉम्बिनेशन नोटेशन है। इसी तरह 10C5 है तो ये 10 माइनस 5 और फिर प्लस 1 तो 6 हो जाएगा। 6 पे जाके रुक गए आप। 10 से शुरू करना है, सबको मल्टीप्लाई कर दें। 5 फैक्टर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5। सो मल्टीप्लाई किया, इनको देख लीजिए कॉमन टर्म से कैंसिल कर दें, 3 2 the 6 ये कट गया, 5 2 the 10 ये आ गया। आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग आंसर एज 250।
तो binomial theorem expansion in terms of the combination notation. Using the combination notation, the expression x plus y can be written as. मेरा ख्याल है इसको याद करना ज्यादा आसान है आपके लिए, ठीक है? तो better use this notation. अब देखिए x plus y power and how am I explaining it? Again, as usual, the n power of the first term, that is xn, then nc1 आपका अब यहाँ से शुरू होगा. nc1 फर्स्ट टर्म से नहीं होगा, सेकंड टर्म से शुरू होगा. nc1 and reduce 1 from its power, so that is x power n minus 1 and the second term power 1. अब देखिए सब कुछ आया, nc1 आ गया, x power n minus 1, y power 1. अब बड़ा आसान होगा नेक्स्ट टर्म बताना, nc2 x power n minus 2 and y power 2. ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, nc3 x power n minus 3 y power 3. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये इसको याद करना आसान है आपके लिए. एंड कीप ऑन डूइंग द, ये rth टर्म लिखिए, इसको क्या कहते हैं, rth टर्म, ncr x power n minus r y power r. दिस इज योर, बल्कि r प्लस 1th टर्म होगी, और अगर r आ रही है तो एक ज्यादा होती है ना. देखें यहाँ पावर 2 आ रही है, तो ये थर्ड टर्म है, पावर 2 है, बस t2 लिख रहे हैं ना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, बट दिस इज द टर्म, थर्ड टर्म. यहाँ 3 आ रहे हैं, दिस इज योर फोर्थ टर्म. अगर यहाँ r आ रहा है तो दिस इज योर r प्लस 1th टर्म, एक ज्यादा है ये. मैंने कहा था ना, एक पावर से एक टर्म ज्यादा होती है. तो ये r प्लस 1th टर्म, इसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं. एंड द लास्ट टर्म एज यूजुअल y पावर n, is y power. तो आई होप दिस एक्सप्रेशन इज गुड इनफ, इसको याद रखिएगा और खुद से आप लिखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा. नोट है कुछ तो देख लें. इफ द बाइनोमियल इज रेज्ड टू पावर n, देयर आर n plus 1 टर्म्स इन द एक्सपेंशन. यही आपसे डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले. फॉर एग्जांपल, इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus y power 6, देयर आर 7 टर्म्स. The powers of x are decreasing. अब देख रहे हैं ना, x की पावर n थी, कम हो गई x n minus 1 हो गई, और कम हो गई n minus 2, और कम हो गई n minus 3, और y की पावर बढ़ रही है, are increasing in order. देखिए y की पावर 1 आ गई, फिर 2, फिर 3. तो the second term की पावर will keep on increasing and the first term power will keep on decreasing. The sum of the powers of x and y in each term is always equal to n in the expansion of this. और देखिए इन दोनों को ऐड किया तो n minus 2 plus 2 हमेशा n आएगा, n minus 3 plus 3 हमेशा n आएगा. तो ये कह रहा है ओके. द r plus 1th टर्म, इसको जनरल टर्म भी कहते हैं. ये क्या है, अभी आपको मैं कह रहा था, ये जो है कौन सी टर्म है, ये rth टर्म नहीं कहलाएगी. r है तो ये r plus 1th टर्म. ओके, तो आपसे जब भी पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर एनी टर्म. अब मैं r को कुछ भी रख दूं, फर्स्ट कॉलम में r को यहाँ 4 रखता हूँ, तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी. r को 4 रखने से हमारी टर्म कौन सी होगी, फिफ्थ. तो r प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 यहाँ लिखेंगे आप, एंड जो भी आपका वो लिखेंगे, r को 4 रखेंगे, यहाँ n माइनस 4 हो जाएगा, y की पावर 4 हो जाएगा. एग्जाम्पल देखिए, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड द फॉलोइंग. इसने कुछ एग्जांपल्स दिए कि आप लोग ये क्वेश्चन करें. इसमें से मैं कोई सा क्वेश्चन कर सकते हैं. चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं. 1 plus x पावर 8, ये उसने किया है उस पहले मेथड से. लेकिन अगर आप दूसरा मेथड भी लगाएंगे तो यहाँ पे होगा nc1, ये है nc2, nc3, nc4, और ये nc1, nc2. देखें, आपको मैं कहता हूँ कि ये निकाले nc2, ये है nc2.
So इसकी value directly you will get from your calculators. Now let me tell you how are you going to get this value directly. पहले power n है ना 8, n is 8, तो आप पहले 8 लिख लें. Okay, take your calculator gentlemen. 8 आपने लिख लिया. जो भी ऊपर है ना NC, ये 8C2 हम निकाल रहे हैं. 8C1 तो 8 आ जाता है, 8C2 को आप चेक करें. आपने 8 लिखा. अब देखिए C का एक NCR कहीं लिखा नजर आएगा किसी भी बटन के ऊपर. सर 28. देखो ना NCR आपको मिला कहीं, जी सर मिल गया. या AC के नीचे लिखा हुआ है, या डिवाइड के ऊपर लिखा हुआ है ना. ये नीचे लिखा हुआ है. ये शिफ्ट दबा के आएगा, तो शिफ्ट दबा के आप ये बटन दबा दें तो आपका C आ गया. और फिर आप इसको 2 को दबा दें तो 8C2 आपको अपने कैलकुलेटर पर नजर आएगा. इक्वेट कीजिए, आंसर इज 20 है. और ये देखिए यहाँ पे इसने ये 28 निकाला है. ये डायरेक्टली, ये बजाय इतनी कैलकुलेशन लिखने के आप यहाँ लिखें पहले 8C1 8C2 और इस तरह से करते जाइए और फिर यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करें. चले हम निकालते हैं ये कौन से वैल्यू, चलिए ये निकालते हैं. ये क्या है, 8C6 है. कैलकुलेट अगेन, ऑल ऑफ यू प्लीज कैलकुलेट फ्रॉम योर कैलकुलेटर्स. 8 लिख लिया आपने, फिर 28 again. C लाइए और फिर 6 ले लें. 8C6 कितना दोबारा 28 आ गया. 28. ओके, अगेन 28, ये आ गया 8C6. तो ये सब चीजें आपने पढ़ी भी होंगी यकीनन, ऐसी नहीं कि आपने इंटरमीडिएट में कैलकुलेटर नहीं यूज किया. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज लॉन्ग एक्सप्रेशंस, यहाँ पे पहले आप एक्सपेंड किए तो लिखेगा 1 की पावर 8 तो 1 ही रहा. फिर आप लिखेंगे n C1 और अच्छा देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं. यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम नहीं, एक ये बाइनोमियल सीरीज करनी इसको आप, जहाँ पे एक टर्म आपकी 1 हो जाती है तो हमेशा 1 की पावर जो भी होगी इट विल रिमेन 1. ठीक है ना. तो x को आप इधर लिख लें, 1 को इधर रख सकते हैं ऐसे भी, या अगर नहीं है तो ऐसे ही ले लें. तो इस 1 की पावर जो भी है नेक्स्ट टर्म्स में वो 1 ही रहना है. सो ही इज नॉट कंसिडरिंग दिस टर्म एट ऑल. 8C1 इसकी पावर पहले हमने कुछ नहीं ली, नेक्स्ट टर्म में लिखा पावर 1, उससे नेक्स्ट टर्म पावर 2. इसकी पावर बढ़ती जाएगी, सेकेंड टर्म की हमेशा पावर बढ़ती है और फर्स्ट टर्म की पावर घटती जाती है. लेकिन यहाँ पे चूंकि फर्स्ट टर्म है ही 1, तो 1 की पावर 7 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, जो भी घटेगी it will remain 1. So that's why he is not writing anywhere. Second example अच्छी है. देखिए जब माइनस आ जाए ना बीच में तो आप क्या करें, इसको प्लस करें और माइनस अटैच कर दें खाली एक्स के साथ, अलग ब्रैकेट लगा दें. इसको भले स्क्वायर्ड ब्रैकेट कर लें और माइनस एक्स को यहाँ ब्रैकेट में लिखें और बाहर प्लस डाल दें. बात समझ में आ गई. मेक इट प्लस और माइनस जो है इस सेकेंड टर्म के साथ अटैच हो. तो माई फर्स्ट टर्म इज 1, ये हो जाएगा NC1 7 ही रहेगा. सेकेंड टर्म इज माइनस एक्स को ब्रैकेट में डाल दिया. अब इसकी पावर बढ़ती जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी. तो बाद में जब आप एक्सपेंड करेंगे तो माइनस विल बिकम प्लस फॉर इवन पावर्स एंड माइनस वन विल रिमेन माइनस फॉर ऑड पावर्स. ठीक है. अच्छा देखिए ये सेशन जब खत्म होगा तो यू विल गो फॉर द ब्रेक ऑफ 20 मिनट्स. आप अपना नाश्ता वगैरह करके फिर आ जाएंगे. तो होपफुली अभी आपके पास है अभी कुछ टाइम, तो आई होप क्लोज टू 10:05 या 10 पे ये हमारा ख़त्म होगा सेशन. तो फिर आप 10:30 तक ब्रेक कर लीजिएगा अगर ये 10:10 पे ख़त्म होता है. बस 20 मिनट्स आप देख लीजिएगा. अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 चेक कीजिए. कहते हैं एक्सपेंड 1 + x power 10 as far as the fourth term and hence evaluate this power 10 and this power 10 again.
करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस। ये अच्छा सवाल है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। और मैंने कहा था ये सीरीज एक्चुअली फर्स्ट टर्म अगर आपके पास 1 आ जाए तो बड़ा आसान हो जाता है। फिर हम इसकी पावर डिक्रीज होती जाएगी ना, क्योंकि फर्स्ट प्लेस की टर्म जो होती है इसकी पावर डिक्रीज होती है, तो x1 की पावर जो भी डिक्रीज होगी वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी। उसने 4 टर्म्स का है, तो 1 की पावर 10 पहली टर्म क्या होगी, 1 की पावर 10, इट विल रिमेन 1। नेक्स्ट, अब हम 1 का जिक्र छोड़ देंगे क्योंकि बेकार है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब nc1, तो 10c1 विल रिमेन 10। अब सेकंड टर्म की पावर 1 बढ़ा दें, फिर नेक्स्ट विल बी 10c2। 10c2 कैलकुलेट कीजिए, 45 आ जाएगा आपके कैलकुलेटर पे। अगली टर्म की पावर एक और बढ़ गई, अगली टर्म में फिर अगली टर्म की पावर एक और बढ़ जाएगी और ये आ जाएगा 10c3। 10c3 आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिए, 120। बस जी सर 120 आ रहा है। आ रहा है ना, शाबाश। तो उसने कहा था 4 टर्म्स निकाले, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, जो उसने कहा था। तो वी हैव कैलकुलेटेड द 4 टर्म्स। शाबाश, अच्छा है आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो। अब देखो जरा और से, तो यहाँ पे अब x को उसने किससे रिप्लेस कर दिया, 0.004। अगर मैं पीछे प्लस डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 + 0.004 इज एज गुड एज 1.004। अब देख लो 1 में 0.004 को ऐड करके देखो तो गोया ये चीज आएगी ना फिर, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। तो वी आर ब्रेकिंग दिस 1 नंबर इनटू 2 नंबर्स। जैसे आप 5 को 3 + 2 लिख सकते हो ना, है कि नहीं। इसी तरह 1.1 को आप लिख सकते हैं 1 + 0.1, ठीक है, राइट। 1.02 तो 1 + 0.02 कर सकते हैं हम, तो प्लस डाल दिया हमने। नाउ अगर कंपेयर करें यहाँ से इसको, तो द वैल्यू ऑफ x इज नाउ 0.004। नजर आ रही है। चलिए इसको एक्सपेंड करें, तो यहाँ पे x की जगह रखते जाए। x की जगह अब हमारी क्या वैल्यू आ गई, 0.004। फिर यहाँ पे x की वैल्यू रख लें, ये आ जाएगी 0.004/2। चूंकि खुलवाया इसने इसीलिए था। अब यहाँ पे x की वैल्यू फिर रख दें 0.004/3। एंड नाउ यू आर टू यूज योर कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर्स आई टोल्ड यू, या तो x की पावर y दिया होता आपके कैलकुलेटर में, या x के ऊपर कैप दिया होता है फॉर हायर पावर्स। बताया था ना मैंने आपको जी। मुझे बताएं, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, आप ये तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। 0.004 की पावर 2, ये सिर्फ इतना बताया मुझे। व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। 45 से तो हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट यू टेल मी व्हाट आर यू गेटिंग द पावर 2 ऑफ 0.004। ये इसका स्केल ले रहे हैं ना। Sir, 1.6 into 10 inverse 5. इसको डेसिमल में बताइए। 1.6 की पावर इंटू 10 पावर -5। -5 का मतलब होता है कि आपने डिजिट को 5 हिस्सों तक लेफ्ट पे ले जाना है और पीछे। तो 1 के बाद आ रहा है ना आपका पहला डिजिट, 1 पॉइंट। डेसिमल कब आ रहा है, 1 के बाद आ रहा है। इस डेसिमल को आप पीछे करेंगे कितना, अप टू 5 वैल्यूज। तो एक वैल्यू तो 1 हो गई, तो और कितने हम जीरो लगाएंगे पीछे, 4 जीरोस। तो आंसर हो जाएगा आपका 0.0000। ये 4 दफा जीरो बोला, फिर आगे लिखेंगे आप 1 और 6। बात समझ में आई। लिसन अगेन जेंटलमैन। 1.6 10 पावर -5 आ रहा है ना, तो 10 की पावर -5 जो मल्टीप्लाई में नजर आ रहा है, इसका मतलब है अपने जो डेसिमल है पॉइंट, इसको 5 डिजिट्स लेफ्ट पे शिफ्ट करना है। एक डिजिट तो आपको मिल रहा है, दैट इज 1, और जो आगे नहीं मिल रहे उनके आगे, उनके लिए आप लिखेंगे 000। तो एक डिजिट मिल गया और 4 जीरोस और लिखेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा आंसर आपका 0.4 जीरोस, उसके बाद 16, तो डिजिट शिफ्ट हो गया। और फिर आप इसको जरा 45 से मल्टीप्लाई करें,
7.2 exponent -4. -4 है ना, तो -4 को अब हम फिर डेसिमल को ले जाएंगे लेफ्ट पे, तो कितना, एक डिजिट तो मिल गया 7, और कितने जीरोस हम लगाएंगे फिर 3 जीरोस। ओके, तो आपका होगा 3 जीरोस लगाएंगे और फिर उसके बाद 7 2 लिखेंगे। लिखा है ना इसमें, ये आ गया समझ में, पॉइंट फिर 3 जीरोस और 7 2, ये आपको कैलकुलेटर पर नजर आ जाएगा ना। इसकी पावर 3 अब लें और जीरोस बढ़ जाएंगे, बताइए 0.004। अब आप पावर 3 कैसे लेंगे? 6.4 exponent -8. दिस इज 6.4 एंड 10 एक्सपोनेंट -8, बिल्कुल ठीक है। अब एक डिजिट आपके पास है 6 बिफोर द डेसिमल, है ना, डेसिमल देखें आप, उससे पहले लेफ्ट पे देखिए, लेफ्ट पे 6 है। हमने डिजिट को, वो जो सॉरी डेसिमल को कहाँ ले जाना है, कितने डिजिट पीछे करना है, 8 तक। तो 8 का मतलब एक तो मिल गया हमें 6, बाकी 7 जीरोस लगाएंगे। अब हमारा डेसिमल कहाँ चला गया, शुरू में डेसिमल के बाद हमने 7 जीरोस लिखने हैं और फिर 64 लिखना है, और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपके पास आया उसको मल्टीप्लाई कीजिए 120 से, so that is coming to be 7.68 and into 10 power -6। एक डिजिट अब मौजूद है आपके पास 7, सॉरी एक डिजिट है, तो डेसिमल को पीछे ले जाएं तो एक कवर हो गया, बाकी 5 जीरोस और लगाएंगे आप, तो दैट विल बी पॉइंट देन 5 जीरोस एंड देन 768। देखा, ये 5 जीरोस है ना, 768, एंड में इनको टोटल कर लीजिए तो करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस, और इसको आप डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स आपने लिखने, करेक्ट हो गया आंसर। इसी तरह आप ये करेंगे, x की वैल्यू बदल गई, अब यहाँ पे इसको प्लस कीजिएगा और माइनस साइन विल बी अटैच विद द सेकंड टर्म के साथ माइनस, और ये आपका x है। x की जगह अब हमने क्या प्लेस करना है, ये देखिए आपकी ये सीरीज आई थी 1 + 10x, तो अब नाउ इंस्टेड ऑफ x यू विल बी राइटिंग -0.002, नेक्स्ट वाज प्लस 45, कैसे लिख रहे हैं x स्क्वायर, यानी -0.002 का स्क्वायर लेंगे, फिर नेक्स्ट पावर 3 लेंगे। तो आई टोल्ड यू द स्क्वायर यानी इवन पावर है तो ये प्लस हो जाएगा, ऑड पावर इट विल रिमेन माइनस, पावर 1 है इट विल रिमेन माइनस। तो ये फर्स्ट टर्म प्लस साइन के साथ, सेकेंड टर्म माइनस साइन के साथ, थर्ड टर्म ये प्लस हो जाएगी बिकॉज ऑफ इवन पावर, और ये फिर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पावर इज ऑड। तो प्लस वाली यानी 1 को प्लस वाली प्लस में ऐड कर देंगे और माइनस वाली माइनस में ऐड करेंगे, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ये आंसर आ रहा है, लेकिन हमने 5 डेसिमल तक लेना है, तो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, ये हिस्सा बड़ा है, 9 इज ग्रेटर देन 5, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे, इस 7 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। पता है ना राउंड ऑफ करना, आपको आता है, हमने 5 डिजिट्स लेके रुक जाना है, बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 5, 5 से हिस्सा बड़ा हो तो फिर हम पीछे वाला हिस्सा जो है ना इसको एक बढ़ा देते हैं, तो 0.980 और ये 1 के बाद ये 8 हो जाएगा, एंड विल लीव दीज डिजिट्स, क्योंकि हमें 5 तक जाके रुक जाना है। वी आर टू फाइंड आवर आंसर करेक्ट अप टू 4 प्लेसेस। अब आपकी 10 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी। 10 मिनट के बाद आपके पास टाइम तकरीबन 10:10 हो रहा होगा ना, 10:05 हो रहे होंगे, तो आप 10:25 तक ब्रेक कर लीजिएगा, ठीक है। सर अटेंडेंस लगा दे मेरी सर। किसकी? 11475 मोहम्मद उमर सिद्दीकी। तो आप अभी क्यों आ रहे हैं इतनी देर से, ये बताएं। सर मैं 8:55 से क्लास में हूँ, लेकिन अटेंडेंस हो चुकी थी सर।
तो बैठे, अब जब सेकंड अटेंडेंस शुरू करूंगा ना फिर बताना, या अभी और 10 मिनट बाकी है, आखिर में जब 1 मिनट रह जाएगा फिर बता देना। अच्छा, क्लास के दौरान अगर बोलोगे तो फिर तो हम पढ़ नहीं सकेंगे ना, फिर हम आपकी अटेंडेंस लगाते रहेंगे सारा दिन। देखिए कुछ और भी सवाल है। जहाँ भी 1 होता है आपके लिए एक बड़ी फैसिलिटी होती है कि फर्स्ट टर्म की पावर जो कि कम हो रही होती है वो टर्म ही गायब हो जाती है और इसकी पावर बढ़ती जाती है। सेकंड टर्म में ये 1 होगा, थर्ड टर्म में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फोर्थ टर्म में ये क्यूब हो जाएगा। चले हम ये अंडर रूट वाले आप रहने देंगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। सिंपल सिंपल ये वाले करें। ये 4 टर्म तक जैसे भी पहला क्वेश्चन मैंने करवाया था, x प्लस 1 प्लस एक्स पावर 20 1 माइनस एक्स, अगर माइनस है तो उसको मेक इट प्लस और माइनस को ब्रैकेट में डाल दें x के साथ, तो सेकंड टर्म विल बी माइनस एंड कंसीडर इट एज 1 प्लस। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें x की पावर 4 आप देखिएगा कैसे निकालेंगे, देखता हूं मैंने कितने सॉल्व आपको ये करके रखे। फिर एक्सरसाइज आगे आ रही है 13.2, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड द फॉलोइंग। इनको एक्सपैंड करना सीखना है आपने। यूज ऑफ फॉलोइंग बाइनोमियल थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अभी हमने किया था। इसको पहले एक्सपैंड कर लीजिएगा, तो देखें 3 डेसिमल प्लेसेस तक जहाँ पे हमारे पास आ रही वैल्यू, उसके बाद आगे टर्म्स नहीं कैलकुलेट करेंगे। ये एक अच्छा सवाल आ रहा है, व्हाट आर द 2 मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। तो इसकी मिडल टर्म कैसे रहे, देखिए पावर कितनी है 7 है ना, मैंने कहा था वट एवर इज द पावर यू विल बी गेटिंग 1 मोर टर्म देन दिस पावर। हाउ मेनी टर्म्स यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर द एक्सपेंशन, जस्ट टेल मी हाउ मेनी टर्म्स यू विल गेट। 8. 8 एंड व्हाट विल बी द 2 मिडल टर्म्स। 8 अगर आपके पास है 1 से 8 तक, there are 8 terms. Which term will be the 2 middle terms, कौन कौन सी किस पोजीशन पे होगी, 4th और 5th, am I right? Yes, sir. देखिए 1 2 3 फर्स्ट टर्म छोड़ दें, 4th और 5th तो ये मिडिल में आ गई, और आखिर में फिर 3 टर्म्स आ जाएंगे 6 7 8, 3 ऑन द लेफ्ट एंड 3 ऑन द राइट, ये दोनों छोड़ देंगे तो मिडिल कौन सी आ जाएगी, 4th एंड 5th टर्म्स। तो 4 टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला आपको r प्लस 1h टर्म बताया ना, टर्म अभी पढ़ा था हमने जनरल टर्म फॉर्मूला। सो इन दैट r को अपने 3 रख देना है, तो 3 प्लस 1 का मतलब होगा 4th टर्म। एंड व्हाट इज a, देखिए फर्स्ट टर्म को आप a लिया करें और सेकंड टर्म को b लेने, इज बेटर। तो वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड वैल्यू ऑफ b इज 7। चलिए तो बस सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड यू विल बी गेटिंग द middle 2 terms, 4th term, and then similarly you'll find the 5th term. Find the coefficient of each other. तो आप ये पहले ये टर्म मालूम कीजिए और इस टर्म के साथ जो कुछ लिखा होता है वो कोफिशिएंट होता है, आपको मालूम है। देखिए यहाँ पे x है ना, ये सेकंड टर्म, इसका कोफिशिएंट क्या है, -3। कोई सी भी एक्सप्रेशन लिखी हो, the coefficient is all what is the multiple with that is। चलिए मैं ब्रेक के बाद फिर मैं आपको ये कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, क्योंकि इसी सेम एक्सरसाइज जो मैं आपको शो कर रहा था, क्वेश्चन 1 का एल पार्ट देखिए, क्वेश्चन 1 कहाँ है, ये दी एल पार्ट, दिस लास्ट पार्ट, ये मैंने कहा अगली एक्सरसाइज है
1 by 3 minus x. चेक करें जी, मैंने यही दिया है क्वेश्चन. This is the L part of question number 1. 1 by 3 minus x power 4. My first term, अगर इसको आप assume कर लें, हम नॉर्मली इसको x लेते हैं, ये y है लेकिन फिर y और x में confusion होती है. So I'll ask you that consider this as a and second term as b. तो a plus b की power n, वो binomial theorem इसको भी खोल सकते हैं instead of writing x plus y, because x plus y are given in your problems. यहाँ पे ये आपको दिया जाता है expand करें. So once you want to compare, consider the first term is a and second term is b and the power is n. Using the binomial theorem, चले अब यहाँ पे मैंने x plus y रखा है, लेकिन इसको आप अगर a plus b कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. a plus b पर n, a पर n, nc1, a पर n minus 1, b, nc2, a पर n minus 2, b का square and so on. So last term will be b पर n. So instead of x plus y, you may expand the theorem in a plus b. Well, here in this case, अगर आप और कीजिए, if you are using the same old theorem, x will be the first term 1 by 3, y will be the second term, and I will be taking the sign also minus, so y is minus x, and this is the whole power which is called as n. तो अप्लाई कीजिए इस थ्योरम को. जी हाँ, इसमें रखिए x की वैल्यू, ये आपके चलिए 1 by 3 पावर है, ले लिया, n is 4, 4c1 किया, n is 4, ये ना 4c1. फिर अब इसकी पावर एक कम कर देंगे, 1 by 3 पावर 3 हो जाएगा, और दूसरी टर्म की पावर हम एक ले लेंगे, पावर 1. देन 4c2, एक पावर इसकी और कम कर दें, पावर 2, सेकेंड टर्म पावर 2 हो जाएगा. स्केल इसकी पावर बढ़ जाएगी, यहाँ 1 थी, यहाँ 2 हो गई. Then 4c3, reduce 1 power, so it will become 1 by 3 power 1, and minus x will take cube of that. और लास्ट में क्या हो जाएगा, 4c4, its power will become 0, and minus x power 4. You'll simplify. 1 by 3 power 4, 4c1 will remain 4. याद रखिएगा कॉम्बिनेशन 1 में वही इंसा आता है, 7c1 7 हो जाएगा, 10c1 10 होगा, 4c1 will remain 4. 1 by 3 power 3 is 1 by 27, minus x as it is. 4c2 from your calculator you can see it is 6. 1 by 3 का square 1 by 9, minus का square है ना ऊपर, तो ये plus हो जाएगा और x square हो जाएगा, right? 4c3 will remain 4 from your calculators. 1 by 3 is power 1, so 1 don't write it. This minus, because this power is odd, so it will remain minus power 3, minus x cube. And the last term is this one, minus x power 4 will become plus x power 4. 4c4 will be 1, remember, 4c4 will be 1. And anything power 0, you told in the beginning, will remain 1. तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, आखिर में आ जाएगा 1 into 1 into x power 4. Now we simplify. 1 by 3 power 4 is 1 over 81. ये this multiply 4 ऊपर आ जाएगा, 27 नीचे, 4 by 27 x. This minus sign has been multiplied here, plus and multiplied, because everything is being multiplied, so this will become minus. Then plus 6 by 9 को simplify कर, 3 से काटिए, 3 to the 6 and 3 to the 9, 2 by 3 x square. Okay, then it's minus sign, क्योंकि यहाँ minus आ रहा है तो it will be with a minus sign. 4 और ये नीचे 3, 4 by 3 x cube, minus has been written here. And the last term is with plus x4. So this is the solution of the first question.